के लिए कोई प्रपोजल दिया गया और उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं, और अगर नहीं दिया गया तो क्या केंद्र सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। Sir, I shall remain eternally grateful to the honourable member for having sent this question to me. Sir, I have been on record 7 years as a long-suffering Minister for Housing and Urban Affairs, saying that whatever we wanted to do for mobility in Delhi, specifically the Delhi Metro, we pined for, requested for the cooperation of the Delhi state government. On more occasions than one, sir, it was derailed. It was not forthcoming. Funding was not forthcoming. So she makes a very important point. For a city of Delhi's size and population density, today Delhi, if I am correct, sir, whenever the census takes place, in 1947 the population of Delhi, sir, was 8 lakhs. When my previous generation came in through the refugees after the Vibhajan, it became 22 lakhs. अभी जब भी सेंसस होगा, मुझे लगता है दिल्ली की जनसंख्या जो है 2 करोड़ के आसपास होगी. So she makes a very important point. We need more urban transport, more connectivity, and especially the point she makes, I think it's more about the RRTS. There also, the RRTS we were able to get done, sir, because the Delhi state government at that point of time, I'm not making a political point, they were not forthcoming with the finances. In fact, the Supreme Court had to intervene, and the Supreme Court had to direct the Delhi government to make available funds for the RRTS instead of spending it on advertisements. As so far as the central government is concerned, and I say this is where the state government becomes helpful. Central government has approved 28.5 km for metro system in Gurugram, and the NCRTC corridor connecting Gurugram was kept on hold by the AAP government for 3 years. Now with the change in government in Delhi, I'm sure that we will be able to get this done as well. But coming to a larger point, we could not have moved from 0 in 2002 to 1,011 kilometers in the 10 years plus of Modi ji's government unless the state governments had also cooperated. And where you find the state governments cooperated, the metro system has gone forward. So I'm very happy for this question. I shall remain eternally grateful, and I think in the coming time we'll have more possibility to work on increasing the connectivity both in terms of frequency of trains and other things for the National Capital Region of Delhi now that we have a more receptive government here. Thank you very much. Thank you. Question number 107, Srimati Sagarika Ghosh ji. Please. Yes. Maanनीय मंत्री जी. माननीय मंत्री. First supplementary, Sagarika ji. So question number 107, my first supplementary. There are numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. माननीय मंत्री जी. माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं।
क्योंकि हमारे सैनिक, वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्रप्रथम के भाव से काम करते हैं। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे भी तो भारत के लिए। जो सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इंपैयरमेंट जो 20% उससे अधिक है, या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपैयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है। क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है, और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है। मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, Manya Sagarika ji, second. So I thank the Honourable Minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the Defence Ministry. So my question was on why the Defence Ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches, and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? Thank you. आप सुनिए तो, प्लीज अपनी सीट पर रख, अपनी सीट पर रहे प्लीज। अरे सुनिए तो, नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट प्लीज। आप बोलो, आप बोलो। उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल से। जो माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है, और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और आप जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है।
पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पार पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद ने जो इस प्रश्न उपसभापति महोदय माननीय सांसद जी ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय सांसद जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां पे आप नजर उठा के देखो। ईएमएस ईएसएम का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है और बंगाल में ये देखा जा रहा है वेटरन्स के प्रति कैजुअल अप्रोच अपनाती है। मेरा यह आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिला जेएसबी है जो बंगाल के कोई 23 जिलों कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। मेरा आग्रह है कि वो बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाएं। पश्चिम बंगाल में सैनिक बोर्ड जहां पूरे साल में एक बैठक होती है, 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये क्या वेटरन्स की बात करेंगे? मेरा तो मानना है कि 15 के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। सभापति महोदय, एक बहुत मूल प्रश्न है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं कि आप वेटरन्स की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की पोस्ट की वैकेंसीज ईएसएम कोटे से भरी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में ग्रुप सी में ईएसएम के लिए 5% और ग्रुप डी के लिए 10% रिजर्वेशन का नोटिफाई किया है। अफसोस ये है कि पदों के धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। प्लीज मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रीगण से, जैसे सवाल संक्षिप्त हो उत्तर भी संक्षिप्त हो। प्लीज माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, थर्ड सप्लीमेंट्री। I would like to ask to you, sir, I would like to ask to you, sir, what may... Please, no. Sir, आप बोलें, आप I would like to ask to you, to the Honorable Minister, what measures are in place to address anomalies or grievances arising from the implementation of OROP, one rank, one pension scheme? थैंक यू रजनी जी। माननीय मंत्री जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। ये प्रमुख जानकारी है, सदन को जानकारी होनी चाहिए। जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ और 1972 से ही ओआरओपी लागू करने के लिए डिमांड होती रही, 42 साल इंतजार किया और ओआरओपी किसने लागू किया? मोदी ने लागू किया। और मैं कह सकता हूं, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी स्कीम का उद्देश्य
वर्तमान और पूर्व पेंशनर के बीच पेंशन रेट्स के अंतर को समय समय पर दूर करता है। 7/11/2015 के गवर्नमेंट ऑर्डर के मुख्य विशेषता ये है। पहला, पूर्व पेंशनर की पेंशन को 2013 के कैलेंडर वर्ष के रिटायर कर्मियों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा और यह लाभ 1/7/2014 से प्रभावी होगा। यही मोदी की गारंटी है। सभी पेंशनर की पेंशन 2013 में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ रिटायर कर्मियों की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के एवरेज के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। यही मोदी की गारंटी है। जो पेंशनर एवरेज से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बकाया राशि 4 समान छमाही किस्तों में दी जाएगी। हालांकि सभी पारिवारिक पेंशनर जिसमें स्पेशल पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले और वीरता पुरस्कार विजेता शामिल हैं, उनको एक ही किस्त में बकाया राशि पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। पेंशन हर 5 साल में पुनः निर्धारित की जाएगी। पिछले और वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन दरों के बीच गैप को हर 5 साल में ओआरओपी के तय नियम के अनुसार ब्रिज किया जाता है। ओआरओपी 1 लागू होने के बाद पुराने और नए रिटायर्ड सैनिकों के पेंशन का अंतर काफी कम हुआ। नॉर्मली यह 2014, 19, 24 में होता है, लेकिन 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 1/1/2016 से सभी पेंशनरों की पेंशन 2.57 गुना बढ़ा दी और इससे भी गैप ब्रिज हो गया। इस कारण ओआरओपी 2 के लाभार्थियों की संख्या ओआरओपी से कम हो गई। ओआरओपी से जितनी भी मांगे हमारे सैनिकों की थी, उन सभी मांगों को सुलझा दिया गया है। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम कमिटेड हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 साल में इसे रिवाइज किया जाता है। अब तक 1,24,000, लिख लीजिए, 1,24,000 करोड़ रुपया दिया। 1,24,000 करोड़ रुपया। धन्यवाद। माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माननीय मंत्री बताएंगे उसका उत्तर। सर, वही कह रही हूँ, मंत्री जी सवाल का जवाब दें। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ के जवाब देंगे? धन्यवाद। या तैयार होके आना चाहिए? धन्यवाद। आपका सुझाव ये प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सारे सवाल 1, 2, 3 जो पूछे गए उनका जवाब पहले दे दीजिए। धन्यवाद। माननीय सवाल, ये सवाल नहीं है, माननीय जया जी का विचार है। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, ओरिएंटेशन क्लास में भेजना चाहिए। माननीय श्री शंभू सरल पटेल। सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न संख्या 107 के संबंध में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का निर्देश दिया है। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के वीर सैनिकों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने क्रांतिकारी और सराहनीय कार्य किए हैं। महोदय, जैसा कि बताया गया है कि वर्तमान में पूर्व सैनिक ECHS स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 59 लाख लाभार्थियों को कैशलेस और कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि बिहार में सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सशस्त्र बलों के कुल कितने वेटरन हैं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। उप सभापति महोदय, ESM और के डिपेंडेंट्स KSB द्वारा संचालित वेलफेयर स्कीम के माध्यम से DGR द्वारा रीसेटलमेंट के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बिहार के अंदर ESM 1,08,000 हैं, लिख लीजिए, 1,08,000 हैं। और 2023-24 में राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और उसका जो सेंट्रल शेयर है वो 1,41,00,000 रुपया, 1,41,00,000 रुपया। और राज्य बिहार में जिला सैनिक बोर्ड 13 है, ECHS पॉलीक्लिनिक 18 + 1 सैंक्शन हो गया, 19 हो गए। 2019-2024 में स्वीकृत नए पॉलीक्लिनिक हैं, एक जो पटना में है, उसको भी हमने अपग्रेड किया है। 2024 में अपग्रेडेशन हुआ है दानापुर, उसको C से A ग्रेड में हमने कर दिया है। ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल 48 हैं और नंबर ऑफ ECH बेनिफिशियरी
2,19,000 हैं, 2,19,000 बिहार में। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Sir, I will ask a very pertinent question, which is very important. Sir, the minister has detailed the welfare measures for the ex-servicemen. My question is very specific. What's the total amount outstanding due to the private hospitals under ECHS? And is it a fact that because of the outstanding amount, many hospitals have left out of this scheme voluntarily? Please let the House know the total amount pending and also the number of, sir, please, the number of hospitals which have moved out of this scheme during last 7 years. Thank you. Thank you. महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया है वो मूल प्रश्न से संबंध ही नहीं रखता है। धन्यवाद। Please now we move to question number 108, माननीय श्री नीरज शेखर। प्लीज। प्रश्न संख्या 108। माननीय मंत्री जी। जी हमने उत्तर पटल पे रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री नीरज जी। सबसे पहले मैं जल शक्ति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन से हर घर जल पहुंचाने के जो काम मंत्रालय कर रहा है उसके लिए विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 70 साल बाद किसी व्यक्ति ने इस देश में स्वच्छ पानी पीने के लिए काम किया तो वो काम हो रहा है। लेकिन आज भी समस्या बहुत सारी हैं, विशेषकर आर्सेनिक की जो समस्या है और मेरा जिला बलिया इससे पीड़ित है। न केवल बलिया बल्कि बिहार, बंगाल आर्सेनिक पानी की जो समस्या उससे पीड़ित है। माननीय मंत्री से इसे मैं जानना चाहूंगा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए वर्तमान में कौन सी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और पिछले कुछ वर्षों में इसे सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। धन्यवाद। जो प्रश्न अभी पूछा गया है उसका डिटेल में जवाब देना चाहिए। इसके मैं बताना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो आर्सेनिक वाटर अभी कोई भी घर में नहीं दिया जाता है। पूरे देश को उसमें से मुक्त किया गया है। जहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिलता है वहाँ पर नल से जल को प्राधान्य देते हुए इसी योजना के द्वारा उनके घर में पानी दिया जाता है। और इसके लिए अगर ज़्यादा भी खर्च करना पड़ता है तो 10% ज़्यादा खर्च करके भी उनको अगर वो दूर से पानी लाना पड़ता है तो वो भी दिया जाता है। साथ में उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी 2% एक्स्ट्रा अमाउंट उसके लिए हमने उसका रखा गया है कि किसी के भी शरीर में आर्सेनिक पानी नहीं जाना चाहिए। ये जो 2019 में करीब 16% 8 ग्रामीण घरों में ही पानी दिया जाता था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी करीब 80% से भी ज़्यादा घरों में पानी दिया जा रहा है। और उसके कारण जो WHO का रिपोर्ट भी ये कहता है कि बहुत से फायदे हुए, करीब 4 लाख मौतों को इसमें से बचाया गया है। यूनिसेफ भी जो कहता है कि उसके अंदर करीब जो लोगों को दवा लेनी पड़ती थी, इंजेक्शन लेने पड़ते थे, मानव शरीर में जो वर्जित है ऐसी दवाएं भी उसके शरीर में जाती थी। उसके कारण जो लोगों के पैसे खर्च होते हैं सरकार को छोड़कर वो भी करीब 8.4 लाख करोड़ का खर्चा होता था, वो भी पैसा उसके अंदर ये बचाया गया है। जो महिला है, जब महिला की बात करते हैं, अभी महिला दिन हमने मनाया है, तो महिलाओं के बारे में अगर कहा जाए तो जो 5.5 करोड़ घंटे रोज के जो पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी और पानी का बोझ उठाकर लाती थी, आज उसमें से उनको मुक्ति मिली है। और ये 5.5 करोड़ रोज के घंटे ये महिला अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए उसके अंदर वो खर्च पा रही है। तो महिलाओं के लिए भी काम हुआ है, बच्चों की जान भी इसके अंदर बचा पाई है, पैसे भी बचे हैं और लोगों को घर में अभी पानी और भी अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध है। ये पानी कैसे क्वालिटी का आ रहा है उसके लिए भी हर गांव में करीब 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के साथ उसको किट भी दी गई है। उसके आधार पर ये महिलाएं करीब 25 लाख महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग इस देश में देगी। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा देश होगा कि उसके गांव में, उसके घर में आने वाला पानी किस क्वालिटी का है, वो पीने लायक है कि नहीं, वो अगर चेक करने वाले महिलाओं को ट्रेन किया दिया है तो सिर्फ भारत में है।
वो भी मोदी साहब के समय में ही हो पाया है। और धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री नीरज जी। मैं माननीय मंत्री जी का आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूँगा कि बलिया के लिए आर्सेनिक समस्या को खत्म करने के लिए 3,500 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जल जीवन मिशन की वर्तमान कवरेज की स्थिति क्या है और यह देश के आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को कवर करने में कितना प्रभावी रहा है? धन्यवाद। उसका बहुत डिटेल में जवाब दिया है कि आर्सेनिक वाटर अभी कहीं भी किसी के घर में नहीं जा रहा है और उसके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, कितनी महिलाओं को कितना ट्रेनिंग दिया गया, वो मैंने आपको बताया है। एक समय था कि अभी तक हमने करीब 10,500 मानक अपनाए गए हैं आर्सेनिक वाटर किसी के शरीर में न जाए। 2019 में एक करीब आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां 14,000 से भी ज्यादा थी। आज वो सिर्फ 314 बची है और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य इसमें हासिल किया गया है कि आर्सेनिक से लोगों को बचाया जा गया है। शेष जो प्रभावित बस्तियां हैं उसको भी सुरक्षित जल की आपूर्ति हमने की गई है। 2019 में हम तो सिर्फ आर्सेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लोराइड से भी प्रभावित बस्तियां थी, उसके अंदर भी करीब 8,000 बस्तियां थी, उसमें सिर्फ 255 बस्तियां अभी इसके अंदर बची है और इतना बड़ा काम इसके अंदर भी हुआ है। आर्सेनिक हो या फ्लोराइड हो, दोनों वाटर अभी किसी को पीने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। धन्यवाद। माननीय श्री मुकुल वासनिक जी। Thank you, Deputy Chairman. I have a very pointed question. According to Annual Groundwater Quality Report 2024, a large number of districts are affected by contaminants. For example, fluoride affects 263 districts, nitrate affects 443 districts, arsenic affects 118 districts, iron affects 356, and uranium affects 132 districts. एनसीआरबी के मुताबिक एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और वाटर एक्ट 1974 में कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूं कि ये सभी मामलों में कितने मामलों में लोगों को सजा हुई, कितने प्रलंबित हुए और कितने एक्विट हुए। और एक बात और जानना चाहूंगा कि ये तमाम कानून जो प्रदूषण से हमें बचा सकते हैं, इनका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करने में सरकार क्या पहल करेगी? धन्यवाद। बढ़िया है। मदद नहीं आता है। माननीय मंत्री जी, क्या मूल प्रश्न के साथ संबंधित नहीं है। माननीय सुखेंदु शेखर रॉय। माननीय सुखेंदु शेखर रॉय। थैंक यू सर। आई हैव ओनली। आप अगर जवाब से संतुष्ट हैं तो उसका प्रोसेस जानते हैं आप जानते हैं, प्लीज आप जानते हैं प्रोसेस। मुकुल वासनिक जी बड़े वरिष्ठ हैं, आप भी जानते हैं प्रोसेस। किसी जवाब से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए प्रोसेस है। प्लीज Sir, as per the report of the Asian Development Bank 2018, West Bengal was the most arsenic affected population and areas in the country. Now, after establishment of National Institute for Water and Sanitation at Kolkata, what effective measures have been taken by the Government of India to combat those most affected areas, particularly the reason being the unscientific sharing of Ganga water with a neighboring country, severely affecting the districts of Malda, Murshidabad, Nadia, North and South 24 Parganas. This is my pointed question to the Honorable Minister. धन्यवाद। माननीय मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष जी, कलकत्ता के साथ साथ मैंने पूरे देश के बारे में भी बताया कि अभी तक जो 2019 में 14,000 से ज़्यादा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां थी और 8,000 से ज़्यादा फ्लोराइड बस्तियां थी, उसमें से आर्सेनिक में अभी सिर्फ 314 ही बस्तियां बची हैं और फ्लोराइड में भी सिर्फ 255 बस्तियां ही अभी बची हैं और उसके लिए करीब 17,000 जगह पर
उसको चेक करने के लिए हमने एक स्टेशन बना दिए गए हैं। आर्सेनिक प्रदूषण भू-प्राकृतिक समाधान के लिए, वैकल्पिक स्रोत और जांच के लिए भी हमने व्यवस्था की गई है। CGWG के सीमेंट सीलिंग के साथ अगर ये जो आर्सेनिक जल आता है तो भूमि से आता है, तो उसको रोकने के लिए भी सीमेंट का सीलिंग वाले ही कुएं बनाए जाए, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और ये करने में भी अगर विलम्ब होता है तो सीधा पानी उनको, आर्सेनिक मुक्त पानी उनको मिले, उसके लिए भी हमने काम किया है। गंगा की जो स्थिति थी, वो गंगा की स्थिति के बारे में मैं नहीं कहूँगा, मगर आज वो जो पेयजल हो गया है, उसके लिए जो प्रदूषण था उसके अंदर बहुत सी कमियां भी आई है। और उसके अंदर जो काम इतने सालों में जो हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। कई शहर जो अलग अलग स्टेट के हैं, उसी में से जो ज़्यादा प्रदूषण आने की चेष्टा होती है, हम उसको भी STP के द्वारा क्लीन करने के लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और जो पीने का पानी जाता है वो तो पूरा उसके अंदर STP में टेस्ट करने के बाद ही, उसके प्रोसेस करने के बाद ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय श्री संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत सारे अध्ययन से पता चला है कि आर्सेनिक कंटामिनेशन अब फूड चेन में भी आ गया है, जैसे चावल में, गेहूं में, आलू में, सब में कंटामिनेशन है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चावल, गेहूं और आलू में आर्सेनिक स्तर की नियमित रूप से जांच करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है या नहीं। एक दूसरा, व्यापक आर्सेनिक कंटामिनेशन को देखते हुए खाद्य आपूर्ति में आगे कंटामिनेशन को रोकने के लिए आर्सेनिक कंटामिनेशन इरिगेशन वाटर सोर्स विद सेफर अल्टरनेटिव उसे बदलने के लिए क्या कुछ विभाग उपाय कर रही है कि नहीं कर रही? धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो उन्होंने कहा कि अलग अलग आलू है, गेहूं है, उसके अंदर भी आर्सेनिक के वजह जो कंटेम पाया जा रहा है। हम तो जो जल जीवन मिशन के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पीने के पानी के लिए, उसके लिए पूरे सोर्स को पहले उसको जांच करते हुए उसकी व्यवस्था करते हैं। ये जो बाकी का जल है, हर जगह पर जो मिट्टी में से आता है, नदी में से आता है, उसके रोकने के लिए हमारी व्यवस्था नहीं है, मगर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी काम करता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ तो जल जीवन मिशन के द्वारा पीने का पानी शुद्ध हो, उसके अंदर आर्सेनिक ना हो, फ्लोराइड ना हो, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। और हर जगह पे, हर बस्तियाँ जो बस्तियाँ बची है, वहाँ पर भी हम नल से पानी देते हैं। इसके लिए वहाँ भी किसी को भी आर्सेनिक या फ्लोराइड का कंटेंट नहीं जाता शरीर में। क्वेश्चन नंबर 109 श्री बाबूराम निषाद जी। माननीय बाबूराम निषाद। माननीय मंत्री जी। Sir, the answer is placed on the table of the House. थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार घरेलू स्तर पर निर्मित विमान घटकों की गुणवत्ता, आश्वासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है, और यदि हाँ कर रही है तो उपाय क्या हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। Thank you, sir. I think this is a very pertinent question considering the growth of civil aviation that we are experiencing in the country, not just in terms of passenger traffic, but we want to see a holistic growth, and we want to see growth in manufacturing. And one of the prime objectives when we talk about aircraft component manufacturing is to prepare, build, manufacture our own aircraft in the country, which is the RTA. And many things have processed so that we achieve this regional transport aircraft manufacturing in the country, sir. And there are many different approaches for this. And one theme that we are having right now is a short-term approach, medium-term, and a long-term approach, because it is not a one-line approach for us to make an aircraft in the country. If you take an example of other countries, how they have done it, it has been a process which has been built up for 40 years and 50 years. Though we don't want to see it taking up that much time, we want to have a strict plan. And how do we ensure to do it, sir? One important thing is to improve the aircraft component manufacturing in the country itself.
That is one of the short-term plans that we have. And in the last 5 to 10 years, under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have been able to create so much demand in the country that the big companies like Airbus, Boeing, Embraer, and let it be Safran or Lockheed Martin, Rolls-Royce, all these companies which are the major manufacturers of engines and aircraft outside the country, they have set up their shop here. Let it be in terms of procurement of the key components, or increasing the number of components that they procure from India, or setting up MRO facilities in the country. So we have done a lot to invite them into the country itself and set up shop, which has increased the know-how and the technical expertise of the country itself. And the second process is, sir, to bring in all the necessary policies. And for that, if you look at the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, which we have also passed, in that I have also specifically told this House that now we are no longer are looking at India as only a player which is trying to buy things from outside, but we are seeing India as a country which is state of design, state of manufacture and state of maintenance when it comes to aircraft. So we have changed the thought process that we have when it comes to manufacturing of aircraft. We are saying that India is at the stage right now where we can manufacture, we can design and we can maintain an aircraft. And on top of that, sir, the necessary policies that we need. One is to promote more aircraft component manufacturing. We from the ministry are continuously engaging with the industry, and we are continuously engaging so that we can give them the confidence that the focus for the government is also on you to improve the manufacturing sector. We are talking with the states and telling them to have more manufacturing, because they are the key players here, the state governments, and when they are looking at manufacturing, sir, we are encouraging them to look at manufacturing in aerospace components and aircraft components also, and we have yielded some good results in that area. And the third sector that we are planning is the skilling. Skilling is equally important as we are trying to increase our manufacturing also, and for that we have set up FTOs. We currently have 58 working FTOs, and we are doing AME training in 57 bases in the country, and through which we are creating 3,800 AMEs every year, which is catering to the demand that we have created. And also through the skill development program in the aerospace and aircraft component manufacturing and the industry itself, we have identified 38 courses, and over the last 8 years, we have trained up to 18,000 people in this area, sir. So when it comes to manufacturing of an aircraft, creating the ecosystem, one is improving the aircraft component manufacturing, creating the government policy, and third is creating the skilling. So looking at all this holistic approach, the government is looking at it, sir, and very soon we are going to set up a special purpose vehicle also, so that the RTA, regional transport aircraft, which has been a continuous dream for the country, and to have a specific plan. We have a plan to create an SPV for 5 years, sir, which is going to bring in all the necessary stakeholders, bring them onto the table and study the existing picture in the country and create a roadmap that in 5 years, if you want to see an RTA being built in the country itself, what is the necessity today? What kind of policies furthermore we need to do? So we are in the process of setting up the SPV also, sir. Thank you. Second supplementary. बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने बहुत विस्तृत विषय। माननीय बाबूराम जी, सेकंड सप्लीमेंट्री आप पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विमान विनिर्माण में नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल कार्यान्वित की जा रही है क्या? I think you have explained in detail. Probably partly answered. I still have a little bit of answer regarding this, sir. We have National Civil Aviation Policy 2016, and in that we have specifically mentioned that we want to promote Make in India and Atmanirbhar Bharat also, which is where the schemes to promote these kind of aircraft component manufacturing also comes into place. And we have within the policy itself, sir, where we are saying that if someone is interested to put up this kind of industry, then from the government of India, we are going to promote and ensure that whatever special economic zone incentives that the industry needs to get, we are going to facilitate. We are going to speak with the Ministry of Commerce and ensure that there is a smooth progress in their establishing of the industry. But what we have observed over the last 5 to 10 years, sir, the states have come up very well. I would like to take the example of government of Telangana also, where they have created some parks within themselves where they didn't even approach us.
They have in fact given the necessary incentives, they have given the necessary ecosystem, and today they are boasting about 3 to 4 parks inside the state itself. There is the Adivatla Aerospace SEZ, Nadargul Aerospace Park, GMR Aerospace SEZ, Adani Aerospace Park, Hardware Park 1 and 2. So when the states are only taking up this initiative because this aerospace and aircraft manufacturing is creating so much jobs, and it is bringing in the necessary know-how and technical expertise, which is going to further help in bringing a lot more other industries also. This becomes the anchor industry, sir. So the states have been proactively moving, government of Telangana, Karnataka, and now Andhra Pradesh. So all these states are actively looking. On top of that, if there is anything that is required from the government of India, we are very much willing and looking forward to offer the necessary support so that there is a increase in the industry setting up, sir. Thank you. Mania Dola Sen ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. About 80% of civilian aircraft by airlines in India are acquired on lease, which is much higher than the global average of 53%. With leased aircraft, lessors demand that airlines conduct maintenance operations at designated sites overseas, which is a big barrier for Indian MRO operations. Moreover, aircraft OEMs need to move technology transfers with India to allow for boosting of ministry planning to overcome these constraints to promote MRO and aircraft component manufacturing in India. And moreover, whether law of the land, labor law, is being maintained in the job which has been created by the minister in this respect. Thank you, Dola. Sir, regarding the MRO setup, we have seen what the Honourable Member has mentioned. It is definitely a flagging issue, and we have tried to overcome that issue, sir. One important aspect in promoting MRO is that we have seen when we import these components for the MRO facility, there have been multiple slabs. Some come under 5%, some 12%, some 18%. So there was a lot of confusion in the taxation also. So to improve and to create much better process of importing these parts, we have unified slab rate of 5% right now, which has greatly pushed of setting up MRO facilities in the country. Second thing, there is another aspect of it where the OEMs, the equipment manufacturers, they wanted to have these MRO facilities in other countries and not preferring India because there was no harmonization. Here we have the DGCA, which is the Directorate General of Civil Aviation, and then the EASA is there in the Europe and FAA in the America. So there has to be harmonization because when these aircrafts question hour is over. When these aircrafts come from other areas, sir. Thank you. So harmonization is one issue, and we are looking up. Thank you. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 2 p.m.